بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کراچی کے 65% شہری پانی کا بل نہیں دیتے۔ واٹر بورڈ کا کراچی کی 5000 صنعتوں میں میٹر لگانے کا اعلان۔ وفاقی ادارے بھی کراچی کے 20 ارب روپے کے مقروض نکلے۔ اسٹیل ملز براڈ کاسٹنگ اتھارٹی پاکستان ریلوے کراچی بورڈ کے مقروض ہیں۔ پی ایس او سوئی سدرن کینٹونمنٹ بورڈ نے بھی بقایا جات دینے ہیں۔ سی ای او واٹر بورڈ صلاح الدین کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چشم کشا انکشافات۔ چیئرمین پی ایس سی کا وفاقی حکومت کو خط لکھنے کا حکم۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی ادارے کراچی واٹر کارپوریشن کے نادہندہ نکلے۔ اسٹیل ملز، پی ایس او، ریلویز اور سوئی سدرن پر 20 ارب روپے واجب الادا۔ کراچی میں پانی کے بلوں کی وصولی صرف 35%۔ لائنوں پر میٹرز کی عدم موجودگی۔ کے ڈبلیو ایس سی کنیکشن کاٹنے سے قاصر۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کے اجلاس میں انکشافات۔ کمیٹی نے وفاقی حکومت کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پی ایس سی نثار کھوڑو کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ حکام کی جانب سے کمیٹی کو بریفنگ دی گئی۔ نثار کھوڑو کا K4 کی تکمیل سے متعلق استفسار۔ سی ای او واٹر کارپوریشن صلاح الدین نے جواب دیا، K4 کا منصوبہ دسمبر 2025 تک مکمل ہوگا۔ وابڈا نے K4 کے لیے وفاقی حکومت سے 80 ارب روپے مانگے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کراچی کو 50% پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ K4 کی گنجائش 260 MGD، کراچی کو 600 MGD پانی کی ضرورت ہے۔ جتنا پانی ہوگا اتنا ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ کراچی کی 5000 صنعتوں میں میٹر نصب کرنے جا رہے ہیں۔ لوٹنے والوں نے مزارات بھی نہ چھوڑے۔ محکمہ اوقاف میں کروڑوں روپے کی کرپشن، 8.25 کروڑ اضافی اخراجات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ 3.5 کروڑ سینیٹائز گیٹ پر خرچ کر ڈالے۔ قطعی رقم زائرین کے کھانوں اور تحائف پر لگائی۔ چیف ایڈمنسٹریٹر نے 10 کروڑ 16 لاکھ کے ٹھیکے ایک ہی کمپنی کو دیے۔ سندھ اسمبلی نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پی ایس سی کو بھیج دی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی افسران کو طلب کرے گی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کرپٹ افراد نے بزرگان دین کے مزاروں کو بھی نہ بخشا۔ محکمہ اوقاف میں اندھیر نگری، چوپٹ راج، مزارات کی مرمت کے نام پر کروڑوں روپے کی بدعنوانیاں۔ تعمیراتی کام میں سیپرا رولز کی بھی خلاف ورزی۔ حکام نے اخراجات کا ریکارڈ بھی پیش نہ کیا۔ سندھ اسمبلی نے رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دی۔ 11 کروڑ 60 لاکھ روپے کی لاگت سے 6 مزارات کا کام کروایا گیا۔ چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف نے کروڑوں روپے کا ٹھیکہ ایک ہی ٹھیکیدار کو دیا۔ 3.5 کروڑ روپے کے سینیٹائزر گیٹس خریدے گئے۔ اخراجات کا ریکارڈ محفوظ کیا نہ ہی آڈیٹر جنرل کو فراہم کیا۔ رپورٹ میں 7 کروڑ 75 لاکھ روپے کے اخراجات مشکوک قرار، متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ کراچی کی سڑکوں پر اب کوئی رنگ بازی نہیں چلے گی۔ نیلی بتی، کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ملیر پولیس نے 23 روز میں 13,30,000 کے چالان کیے۔ تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ کراچی سے انوشا جعفری کی رپورٹ۔ ضلع ملیر پولیس کا ٹریفک پولیس کے ساتھ کریک ڈاؤن، فینسی نمبر پلیٹس اور پولیس لائٹس لگانے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ۔ ڈسٹرکٹ ملیر پولیس نے 23 دنوں میں 13,30,380 روپے کا چالان کر دیا۔ یہ ایک خصوصی کیمپین تھی جو کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی ہدایات پہ کی گئی تھی اور آئیڈیاز 2024 کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پوری کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ اور اس کارروائی کے دوران ہم نے 159 سے زائد کیسز رجسٹرڈ کیے ہیں اور اس دوران میں ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے تقریباً 13 لاکھ روپے سے زائد کے ہم نے چالان بھی کیے۔ ایس ایس پی ملیر لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ کاشف عباسی کے مطابق 23 دنوں میں 159 کیسز رجسٹرڈ، 1,985 ٹنٹڈ گلاسز اتارے گئے۔ تقریباً 2,000 گاڑیوں کے ہم نے ٹنٹڈ گلاسز جو ہیں وہ ریموو کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ وہیکلز جن پہ سائرنز یا پولیس لائٹس تھیں ان میں بھی ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں وہ پولیس سائرنز اور لائٹس ریموو کی ہیں۔ یہ کیمپین جو ہے وہ ابھی جاری ہے، بٹ چونکہ جو اسپیشل کیمپین تھی وہ اینڈ ہو گئی ہے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 641 فینسی نمبر پلیٹ، 116 پولیس لائٹس پرائیویٹ گاڑیوں سے اتاری گئیں۔ 54 پولیس سائرن بھی پرائیویٹ گاڑیوں سے اتارے گئے۔ ایس ایس پی ملیر لیفٹیننٹ کمانڈر کاشف عباسی کے مطابق کریک ڈاؤن اسی طرح جاری رہے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی عمارت سولر سسٹم پر منتقل۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے افتتاح کیا۔ بلدیہ کی آمدن کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ 4 ہسپتال سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا وعدہ۔ میئر کراچی اسٹریٹ لائٹس کو بھی سولر سسٹم سے چلانے کے لیے پرعزم۔ ترقیاتی کام کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بڑا اقدام، کے ایم سی کی تاریخی عمارت شمسی توانائی پر منتقل۔ میئر کراچی کا جلد سرکاری اسپتالوں کو بھی سولر انرجی پر لانے کا عندیہ، سولر اسٹریٹ لائٹس بھی لگانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی مدد سے
अपने 4 हस्पताल हैं जिनको सोलराइज करने जा रहे हैं, उसका तमाम अप्रूवल्स हो चुके हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनवरी तक उसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और वो चारों अस्पताल के अंदर सोलराइज पावर इंशाअल्लाह मैसर होगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 150 केवी का सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है। सिस्टम को के इलेक्ट्रिक से मुंसलिक कर दिया है। मंसूबे पर 2 अरब रुपए की लागत आई है। 150 केवी का हमने सोलर का सिस्टम अपनी इस KMC बिल्डिंग पर मुतारिफ करा लिया है। वो सोलर पैनल हमने अपनी बिल्डिंग में लगा लिए हैं, छत पे लगाए हैं हमने, और के इलेक्ट्रिक के साथ 80 केवी के ऊपर नेट मीटरिंग का निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। मेयर कराची का मजीद कहना था कि जल्द कराची की 3 बड़ी शाहराहों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। आने वाले दिनों में इस शहर में मजीद तरक्याती काम होंगे। पहली बार कराची की सड़कों पे सोलराइज्ड स्ट्रीट लाइट्स हम लगाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो शहर की रोशनियां थी, रौनकें थी, जिसको बहाल करने का जिम्मा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के कारकुनान ने, जालों ने उठाया है, उसके ऊपर हम कार फरमा हैं, उसका भी हम टेंडर कर चुके हैं और कराची की 3 शाहराहों को हम सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। टेंडरिंग हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इस शहर की खिदमत में मसरूफ है। दुनिया भर में कराची के अच्छे पहलू उजागर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद। कैप्को की के इलेक्ट्रिक को 9 रुपये 8 पैसे फी यूनिट बिजली देने की पेशकश। शमसी तवानाई के मंसूबे से फी किलोवाट बिजली 3.4 अमरीकी सेंट होगी। नेपरा से मंजूरी के बाद काम का आगाज किया जाएगा। कराची की रोशनियों को लौटाने का अज़म। कैप्को की के इलेक्ट्रिक को 9 रुपये 8 पैसे फी यूनिट बिजली फराहम देने की पेशकश। कैप्को एलामिया के मुताबिक कैप्को ने ये पेशकश डॉलर की 288 रुपये 65 पैसे पर दी। शमसी तवानाई के मंसूबे से फी किलो वाट बिजली 3.4 अमरीकी सेंट होगी। कैप्को के मुताबिक मंसूबा जिला जनूबी में लगाएगी। मंसूबे पर काम का आगाज नेपरा से हतमी मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक की इलेक्ट्रिक 640 मेगावाट मुताबादिल और माहौल दोस्त बिजली मंसूबे लगाने पर काम कर रही है। के इलेक्ट्रिक के मुताबादिल तवानाई के मंसूबे पर नेपरा की अवामी समात आज होना थी। इस्लामाबाद में मुमकिना अमन अमान की सूरत हाल की वजह से नेपरा ने अवामी समात मुलतवी कर दी है। ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में तमाम तिब्बी सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ग़ज़ाई किल्लत के बच्चों को मखसूस खुराक के साथ इलाज और मुआलजे की तमाम सहूलतें दे रहे हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। नौज़ायदा बच्चों की सेहत के लिए अहम इकदाम। ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों और उनके वालिदैन के लिए अच्छी खबर। खुराक के साथ इलाज की तमाम तर सहूलतें मुफ्त फराहमी पर माएँ मुतमईन। कहती हैं बच्चों की सेहत बेहतर हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वीज़ा टाइम पे हर चीज़ अच्छी मिल रही है। खून की कमी की वजह से वो लाल होकर माशाल्लाह अब सही हो गया। खुराक की वजह से, दूध चॉकलेट की वजह से माशाल्लाह बेहतर है अब। अस्पताल के CEO डॉक्टर मोहम्मद तौफीक और डॉक्टर तबस्सुम ने कहा कि यहाँ पर आने वाले कमज़ोर बच्चों को एक ख़ास किस्म की खुराक दी जाती है, उससे उनकी सेहत बेहतर हो जाती है। हर साल ऐसे हज़ारों बच्चे रिपोर्ट होते हैं जिनको तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम करते हैं। ग़ज़ाई किल्लत का न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन ये हमारे पास एक यूनिक बात है। कराची में एक सिर्फ लियारी में है और दूसरा हमारे पास है। अब लियारी वाला पता नहीं ऑपरेशनलाइज है भी कि नहीं है, पहले तो शायद आई डोंट नो। हमारे पास बहरहाल है 10 बेड का। पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस, सेकेंड वैक्सीनेशन की अवेयरनेस पेरेंट्स में बहुत कम है। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगवाएं ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन लाइनें होने के बावजूद पानी से महरूम है। पानी फिल्टर प्लांट से भरा जाने लगा।
उसामा मलिक की रिपोर्ट। पानी कराची शहर के हर दूसरे इलाके की परेशानी। औरंगी हो या कोरंगी, लांडी हो या सरजानी, हर इलाके की एक ही कहानी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 के मकीन पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। इलाके में लाइनें होने के बावजूद गुज़िश्ता 2 सालों से पानी नहीं आया। इलाके के बच्चे तालीम छोड़कर पानी भरने पर मजबूर। कहते हैं हर इदारे को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दे चुके मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ हम हर हफ्ते आते हैं और शाह फैसल 5 नंबर से आए हुए, पानी शाह फैसल 5 नंबर में आता नहीं है। हमें हर हफ्ते यहाँ पे आना पड़ता है। ठेला भी टूट जाता है, कभी कभार ठेला कल्टी भी हो जाता है। मजबूरी बहुत है। स्कूल भी जाते हैं, अभी मदरसे जाना है हमने, तो फिर भी यहाँ पानी भरने आए। 2 किलोमीटर दूर से आता हूँ। घरों में पानी आ नहीं रहा है, साफ पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है, उसमें सीवरेज का पानी शामिल होता है। भाई अजाब मुसल्लत हो गया हम लोग ऊपर, पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ से भर भर के ले जाते हैं, 2-3 किलोमीटर के फासले से। सुबह ऑफिस जाएं या पानी भरें। इलाके में मौजूद वाहिद फिल्टर प्लांट भी खस्ता हाली का शिकार। मकीनों का कहना है कि अगर ये भी खराब हो गया तो पानी कहां से लाएंगे। वाटर कॉरपोरेशन पानी का मसला हल करे। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। अल्लाहवाला टाउन का खुला नाला शहरियों के लिए खतरा बन गया। इलाका मकीन कहते हैं नाले में मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो चुके। एक कार भी गिरी थी जिसे अपनी मदद आप के तहत निकाला गया। मेयर कराची मामले का नोटिस लें। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। की नाहली शहरियों के लिए दर्दसर बनने लगी। अल्लाहवाला टाउन हुकूमत की निगाह से महरूम। नाला इंसानी जानों के लिए खतरा। नाले में रात के औकात में मोटरसाइकिल सवार गिर रहे हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि सफाई का नामो निशान नहीं। नाला हादसात का सबब बन रहा है। हिफाजती दीवार गायब हो गई। ये कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, हादसा हमारे बच्चों के साथ हो जाता है, बड़ों के साथ हो जाता है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। हमारे घर में बहुत मच्छर, बीमारियां इससे पैदा होती हैं। गंदगी है, ये गंद नहीं होना चाहिए। इसको बनना चाहिए। यहाँ पे बड़े हादसात होते हैं और इतने परेशानी है यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरने में। स्कूल के बच्चे निकलते हैं यहाँ से, क्या समझे, सारा बड़ा निज़ाम ख़राब हुआ हुआ इसकी वजह से। अल्लाहवाला टाउन के अलावा शहर के अक्सर नालों के अतराफ हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत शहरियों की जान और माल व तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। कैमरामैन जाज़ेब के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बिजली की लोड शेडिंग कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर करने लगी। अकबर रोड पर मोटरसाइकिल मार्केट के ताजिर परेशान। कहते हैं कि मार्केट में रोज़ाना 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मार्केट में बिजली लोड शेडिंग जारी। 300 के लगभग दुकानों के दुकानदार परेशानी का शिकार। मार्केट में मोटरसाइकिलों और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें मौजूद। ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि मार्केट में 10 घंटों से ज़ायद की लोड शेडिंग की जाती है। 100% बिलों की अदायगी यकीनी बनाने के बावजूद बदतरीन सूरत हाल है। अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो ये एशिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट है और यहाँ पर अगर 300 दुकानें एक साथ है तो 100% बिजली के बिल अदा किए जाते हैं। उसके बावजूद 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। दुकानदारों का कहना है कि कारोबार पहले ही नहीं रही सही कसर बिजली की बंदिश ने पूरी कर दी है। जब बिजली नहीं होती खरीदार वापस चले जाते हैं। लोड शेडिंग वगैरह बहुत है। अंधेरे में क्या बंदा गाड़ी देगा, जो आते हैं वैसे ही कारोबार डाउन है। ऊपर से अंधेरा वगैरह होता है तो इस वजह से काम की ऐसी भी वो है, कस्टमर वापस चला जाता है। के इलेक्ट्रिक का मौकफ है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गवर्नमेंट प्राइमरी नूरानी नेवल स्कूल किमाड़ी बाउंड्री वॉल से महरूम है। स्कूल की बाउंड्री वॉल 3 साल से टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जिला केमाड़ी का सरकारी स्कूल सिंध सरकार की तवज्जो का मुंतजिर गवर्नमेंट प्राइमरी नूरानी नेवल कॉलोनी स्कूल केमाड़ी गैर महफूज हो गया। स्कूल की दीवार 3 साल से खस्ता हाल। स्कूल के सामने रेलवे ट्रैक पर नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल दिए। असातिज़ा का कहना है कि नशे के आदी अफराद अक्सर स्कूल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। स्कूल की बाउंड्री वॉल ना होने से बच्चे खौफ में मुब्तला है। पुलिस आती है और चली जाती है। जगह ना होने की वजह से, जगह नहीं है तो इस वजह से फिर बच्चों को हमें इधर बिठाना पड़ा, वरना यहाँ सामने फिर बच्चे बैठते हैं, सामने पाउडरी बैठे होते हैं तो बच्चे बेचारों की नज़र तो ज़ाहिर पड़ती है। फिर सर किससे करें, कोई सुनने वाला हो तो फिर ना, कोई किसी से कर नहीं सकते। कोई पुलिस वाले आते हैं वो चक्कर लगा के चले जाते हैं। तलबा का कहना है कि ग्राउंड ना होने के सबब स्कूल से बाहर खेलने जाते हैं।
सर हम यही कहेंगे, हम बच्चों को अंदर करते हैं कि कोई ये उठा के ना ले जाएं, बच्चों को मना करते हैं इनसे कुछ चीज़ नहीं लेके खाओ। ये तो यहाँ 24 घंटे बैठे रहते हैं, हम इसलिए कि इनको भगाते हैं तो ये चले जाते हैं, वरना ये नहीं जाते। बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप इन लोग को हटाएं, आप लोग की मेहरबानी होगी, हम लोग को बहुत डर लगता है, इसलिए हम लोग क्लास में ही रहते हैं। गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे स्कूल में दाखिल होने के सबब तलबा कॉरिडोर में क्लास लेने पर मजबूर हैं। स्कूल की हालत ज़ार महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा जुबैर राशिद, सिटी 21। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन ने कल से शहर के तमाम टाउन्स में हड़ताल का ऐलान कर दिया। सज्जन यूनियन CBA के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि पीर से KMC हेड ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन मुतालबात के हक में मैदान में आ गए। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत के बाहर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ टाउन्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MA जिन्ना रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने KMC और टाउन मुलाजमीन ने नारेबाजी भी की। इस दफा आपने दुनिया में आना, दोबारा नहीं आना, और वो काम करो जो दुआएं लेकर जाओ। आज ये बूढ़ी माए, बूढ़ी बहनें बैठी है, सब बदल होगा। मैं कहता हूँ हिसाब से बचो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदन यूनियन CBA के सदर जुल्फ़िकार शाह बोले, रिटायर्ड मुलाजमीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। KMC पर बल्दियाती मुलाजमीन के 12 अरब रुपए के वाजिबात हैं, लेकिन इंसामिया की जानिब से कोई पेशरफ नहीं हो रही। मेयर साहब ने एक लेटर लिखा था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कि हम जो है इनको ये TMCs को अपने इस फाइनेंशियल की वजह से क्राइसिस है, इसकी वजह से हम ये आइंदा TMCs के लोगों को पेंशन देने के काबिल नहीं है। उस वक्त उन्होंने उसका जवाब का इंतज़ार किए बगैर 9 अक्टूबर को लेटर लिखा और 16 अक्टूबर से ये खिड़की बंद कर दी। उस दौरान 2000 से ज़्यादा लोग रिटायर्ड हो गए TMCs की, इनकी वहाँ से तनख्वाह बंद हो गई, यहाँ उन्हें पेंशन मिलने का आसरा नहीं है। तो ये मजबूरन, आपको पता है कि ये कोई पहला एहतजाज नहीं है। कौंसल के सामने हमने 3 एहतजाज किए, दीगर जगह भी एहतजाज किए, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं निकला, तो आज मजबूरन हमने यहाँ धरना दिया है। मुजाहिरीन ने वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए मुलाजमीन के माशी मसाइल हल करने पर जोर दिया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत हुई। फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोर्ट में आईनी बेंच में पहली समाअत। महकमा पॉपुलेशन में 880 मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने का मामला। सेक्रेटरी पॉपुलेशन और दीगर के खिलाफ आईनी बेंच में तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से 11 दिसंबर को जवाब पर एतराज़ात तलब कर लिए। सिंध भर में असातिज़ा के भर्तियों की पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त। आईनी बेंच का सिंध हुकूमत को पहला बड़ा रिलीफ। आईनी बेंच ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर PST और JST टीचर्स की भर्तियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। आईनी बेंचेस ने सिंध हुकूमत को सूबे भर में टीचर्स की भर्तियों और ज्वाइनिंग की इजाजत दे दी। जिन्ना अस्पताल में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों के खिलाफ केस। जिन्ना अस्पताल की जानिब से जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। वफाकी और सिंध हुकूमत के वकला की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस KK आगा का मोहलत तलब करने पर इजहार बरहमी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सानिया चक्रा गोट केस में अहम पेशरफ्त। MCM लंदन के टारगेट किलर रईस मम्मा समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ 13 साल पुराने मुकदमे का फैसला महफूज। सानिया चक्रा गोट केस का फैसला रवां हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। सरेआम जुआ खेलने का केस। अदालत ने मुलजिम आमिर को मुकदमे से बरी कर दिया। DHA मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने DHA को मुलाजमीन की कैटेगराइज लिस्ट पेश करने की हिदायत कर दी। मेहनत में अजमत है और रिज़्क़ हलाल के लिए मर्द और औरत की तफरीक नहीं। शाह फैसल कॉलोनी में खातून ने सड़क किनारे खाने का स्टॉल लगा लिया। अमरीन न सिर्फ घर का ताज़ा खाना पकाकर फरोख्त कर रही हैं, बल्कि सिर्फ 50 रुपए की फ़ी प्लेट में एक शख्स खाना खा सकता है। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में, और जहां पर एक खातून सड़क किनारे घर के पके हुए खाने का स्टॉल लगाकर अपने घर की कफालत कर रही हैं। आइए आज हम आपको अमरीन से मिलवाते हैं कि उन्होंने ये स्टॉल कब से लगाया हुआ है। यहाँ पर अमरीन ने सारे खानों का भी एहतमाम किया हुआ है। आइए हम आपको अमरीन से मिलवाते हैं जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है। अमरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप ये लाइव कुकिंग यहाँ पर करती हैं, रोटियाँ भी खुद बना रही हैं, आपने यहाँ पे खाने भी खुद बनाए हैं, तो आप ये स्टॉल यहाँ पे कब से लगा रही हैं और क्या मकसद है इस स्टॉल को लगाने का? मेरा मकसद कोई भी नहीं, मकसद भी आपको पता है जिम्मेदारियाँ कितनी होती हैं घर वालों की, तो मैं अपने घर की जिम्मेदारियों वाली हूँ। मेरे अम्मी अबू नहीं है, ठीक है, छोटा भाई है एक और नानी अम्मी है,
میرے کچھ گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے کراچی آنا پڑا. پنیجلا گجرات کی رہنے والی ہوں میں. وہاں سے میں یہاں مزدوری کرنے میں آئی تھی اور میرے یہ شوق تھا بچپن سے اور خواہش بھی تھی, اور آگے آ کے میری یہ ضرورت بن گئی تو میں نے کہا اسے اس ضرورت کو بھی شوق میں استعمال کر لوں. اس لیے میں یہاں کھانا بناتی ہوں اور سستے ریٹ رکھ کے اپنے جیسے ہر کسی کو بہن بھائی کو سمجھ کے میں کھانا جو ہے نا کھانا وانا بنا کے تو اپنی روزی روٹی کما رہی ہوں. امرین کی باتیں سنیں کہ امرین اپنی گھر کی کفالت کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے. گھر کے وہ مزے کے کھانے پکاتی ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد کے اندر امرین کا کھانا کھانے کے لیے بھی آتے ہیں. امرین کے ہاتھوں کا جو جادو ہے وہ بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ شہری موجود ہیں جو یہاں پہ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ یہ امرین کتنے کا کھانا دے رہی ہیں اور اس کے بعد ان کے کھانا کیسے مزے کے ہوتے ہیں؟ کھانا تو ان کا ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے. ہم جب بھی کھانا ہوتا ہے ہم یہیں پر آتے ہیں اور اس غریبی کے دور میں مشکل کے دور میں سستا کھانا دیتی ہے یہ, اور ٹیسٹی کھانا, صفائی ستھرائی بھی ہے. دوسرا گھر کا بنا ہوا کھانا ملتا ہے کیونکہ لیڈیز پکاتی ہیں, کوئی اس میں مسالے تیز نہیں ہوتے, بالکل مناسب ریٹ اور ٹیسٹی اور اچھا کھانا ملتا ہے. اس لیے ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں ہم یہیں پر آتے ہیں. ہر جیسا کھانا ہے. ہم لوگ جب بھی آتے ہیں یہاں پہ کھانا کھانا تھے, مزدوری کرتے ہیں یہاں پہ تو کھانا یہاں پہ گھر جیسا کھانا مل جائے. انسان جب تک خود سے ہار نہ مان لے تب تک اسے کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی. اس کہاوت کی بہترین مثال امرین ہے جنہوں نے اپنی گھر کی کفالت کے لیے سڑک کنارے کھانوں کا اسٹال لگایا ہے, دیسی کھانوں کا. یہاں پہ لوگ بھی بڑے مزے سے ان کے کھانے پسند کر رہے ہیں. امرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ انسان خود ہی محنت اور ہمت سے اگر کام کرے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے. تو امرین یہ اسٹال لگا کے اپنے گھر کی کفالت کے ساتھ ساتھ اپنے بہتر مستقبل کی بھی معیار رکھ رہی ہے. کیمرہ مین عمران احمد کے ساتھ افسر شیخ, سٹی 21.